سب سے پہلے دیکھیے وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کے خصوصی دن کے حوالے سے پیغام۔ الأمیرال السید نواف بن سعید المالکی سفیر خادم الحرمین شرفین اسلام آباد، ایها الضیوف الکرام، سیداتی و سادتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا جمیعا، باسم شعب جمہوریت پاکستان وحکومتها وباسم شخصی اتقدم بأحر التہانی وأصدق التبریکات والآمانی إلى خادم الحرمین شریفین جلالة الملك سلمان بن عبد العزیز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملکی ولی العہد الامین الامیر محمد بن سلمان، وإلى إخواننا وأخواتنا المفتخرین في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني المبارك، وإن قلبي وأنا أسجل هذا الرسالة يمتلئ بالامتنان والسرور إذا ما لقيته من حرارة الاستقبال وكرم الضيافة أثناء زيارتي التاريخية المؤخرة إلى رياض، وإن شعب باكستان يشاركني في تقديم خالص الشكر لجلالة الملك سلمان ولصاحب السمو الملكي ولي العهد على نجاح تلك الزيارة الزاخرة بالمحبة والذكر الخالدة. إن روابط التي تربط بين بلدين شقيقين تبنى على الإيمان والتاريخ والثقة، روابط أبدية وراسخة مستديمة. أيها الحضور الكرام، مع إخواننا وإخواتنا في المملكة نفتخر أشد الافتخار بمسيرتها الملهمة في مضامين التقدم وبالمكانة الرفيعة التي تتبوها في العالم اليوم تحت رؤية ثاقبة وحكمة سديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد. أيها الحضور الكرام، إن شعب باكستان يشاركني في تقدير كرم المملكة وجودها الذين ساعد على استقرار اقتصادنا، وخاصة لن ننسى أبدا مواقف التضامن التي أبداها قادة المملكة وإخواننا السعوديون مع باكستان أثناء توتر مع الهند في مايو من هذا العام. وفي الوقت نفسه فإن المملكة هي الوطن الثاني للملايين من الباكستانيين الذين يساهمون بفاعلية في تنمية وازدهار بلدين الشقيقين. وفي هذه المناسبة السعيدة لليوم الوطني أجدد تأكيد الالتزام باكستان الراسخ بتعزيز هذه الشراكات المستديمة. نسأل الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية ويمنحها دوام التقدم والوحدة والمجد. عاشت أخوة باكستان السعودية وعاشت المملكة العربية السعودية، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی پیغام آپ نے دیکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی ملکوں کی جنگیں رکوائیں، پاک بھارت جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا، جس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران سائیڈ لائنز پر جیو نیوز کے نمائندے عظیم ایم میاں کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں اہم باتیں کی ہیں۔ ٹرمپ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جو تقریر تھی اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے، کیونکہ وہ تو یونائٹڈ نیشن ہی کے ذمہ دار تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کی تقریر میں جو
अहम खसूसी बातें थी, जो सबसे बढ़ कर के वो इस दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं और वो अमन पसंद है, मैन ऑफ पीस। और उन्होंने आज फिर उन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया, बजा तौर पर भी कहा कि उन्होंने दूसरे जो जगहों पर टेंशन थी, वहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक खौफनाक जंग जो 4 दिन की, उसको उन्होंने बंद करवाने में कलीदी रोल अदा किया। और सीज फायर जो हुआ उसमें सदर ट्रंप और उनकी टीम का बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ कि हम उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर, ये जो आज मीटिंग होने वाली है, ये 6 मतलब मुश्तरका तौर से, इसमें क्या पाकिस्तान का व्यू पॉइंट क्या है? पाकिस्तान से तो लीड रोल अदा कर रहा है, तो क्या सूरत हाल होगी है फ्रंट पाकिस्तान? ये ज़रा कबल इस वक्त है, जब मीटिंग हो जाए तो मैं फिर आपसे अर्ज करूँगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास से कबल अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने जनरल असम्बली के गिर्द मोबाइल फ़ोन नेटवर्क जैम करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। सीक्रेट सर्विस ने टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस से लैस एक ऐसे नेटवर्क को पकड़ने का दावा किया है जो न्यूयॉर्क शहर में फ़ोन नेटवर्क को बंद कर सकता था। एक ऐसे वक्त में जब न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की 80वीं सालगिरह के मौके पर 100 से ज़ायद आलमी रहनुमा और वफूद मैनहट्टन में मौजूद हैं। ये मनसूबा इंतहाई ख़तरनाक नताइज का हामिल हो सकता था। अमरीकी सीक्रेट एजेंसी के मुताबिक उन्होंने 300 से ज़्यादा सिम सर्वर्स और 1 लाख सिम कार्ड्स पर मुश्तमिल ऐसा नेटवर्क पकड़ा है जो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट के कुछ हिस्सों पर टेलीकॉम अटैक कर सकता था। सीक्रेट सर्विस एजेंट मैट मैकोल के मुताबिक पकड़ा गया नेटवर्क न सिर्फ मोबाइल फ़ोन टावर्स को गैरफाल करने बल्कि 12 मिनट में अमेरिका की पूरी आबादी को बरकी पैगाम भेजने और इमरजेंसी सर्विसेज के मवासलाती निज़ाम को मुअत्तल करने की सलाहियत रखता था। औरत का रेप, अदालत में सुनवाई, वकला की बहस, असर और रसूख, दबाव, सोशल मीडिया और मीडिया पर लड़ाई, लोग क्या कहेंगे और इस जैसे दीगर जुमलों की वजह से हज़ारों ख़वातीन खामोश हो जाती हैं। जुर्म पनपता है और औरत इंसाफ से महरूम हो जाती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहे हैं बाहिम्मत खातून के इंसाफ के हुसूल की कहानी केस नंबर 9, जिसे तहरीर किया है जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की पहली किस्त कल शब 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नश्र की जाएगी। एक ऐसा जुर्म जो रोज़ाना होता है, मगर एक ऐसा केस जो आपने पहले कभी नहीं देखा। हिदायतकार सैयद वजाहत हुसैन की डायरेक्शन में बनी ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 देखिए हर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। एक मुनफरिद और मार्कतुल आरा ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 नाजरीन के लिए एक मुतासिर कहानी लेकर आ रहा है, जिसमें एक बाहिम्मत और निडर लड़की सहर के किरदार को बहुत ही मुनफरिद अंदाज में दिखाया गया है। ये किरदार माशरती बंदिशों को चैलेंज करते हुए दूसरों के लिए हिम्मत और मज़ाहिमत की अलामत बनता जाता है। ड्रामे में सहर का किरदार अदा करने वाली नामवर अदाकारा सबा कमर हैं, जिन्हें एक खुद एतमाद और बासलाहियत लड़की के रूप में दिखाया गया है। जबकि एक और अहम किरदार कामरान है, जो सफ़े अव्वल के अदाकार फैसल कुरैशी ने अंजाम दिया है। सहर ताकतवर और अना परस्त बिजनेसमैन के सामने झुकने से इनकार करती है। कामरान अपनी अना के जोर पर सहर को झुकाने की कोशिश करता है। ड्रामे की कहानी सहर के हौसले, जद्दोजहद और मज़ाहिमत के गिर्द घूमती है। ड्रामे में सवाल उठाया गया है कि आया सहर कामरान की साजिशों का शिकार होगी या फिर अपने हौसले और सलाहियत के बलबूते पर सुरखरू होगी। ड्रामे के प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी हैं, जबकि हिदायतकार सैयद वजाहत हुसैन हैं। मुनफरिद ड्रामा मारूफ सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के मेजबान शाहजेब खानजादा ने तहरीर किया है। कास्ट में सबा कमर, फैसल कुरैशी, जुनेद खान, रुशना खान, आमना शेख, शाहनवाज जैदी, हिना ब्याद, गौहर रशीद, अली रहमान खान, नूरुल हसन, नवीन वकार, जहरा अमीर, मुजना वकास, कामरान जिलानी, फायजा गिलानी, अजरा मोहिउद्दीन और दीगर शामिल हैं। औरत के साथ ज्यादती, अदालत में सुनवाई, वकला की बहस, असर रसूख, दबाव और इंसाफ के हुसूल तक की कहानी केस नंबर 9 का बुनियादी ख्याल है। ऐसे केसेस में सबूत ना होने पर नहीं बल्कि हिम्मत ना होने पर शिकस्त होती है। लोग क्या कहेंगे, इस एक जुमले की वजह से हजारों खवातीन खामोश हो जाती हैं और जुर्म पनपता है, और यही बात औरत को इंसाफ से महरूम कर देती है। अदाकार फैसल कुरैशी का कहना है कि इस ड्रामे की आज के दौर में शदीद जरूरत है। वो चाहते थे कि ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने जो नई तारीख बना दे और लोगों के लिए हमेशा यादगार बन जाए। उन्होंने कहा कि जब उनके पास केस नंबर 9 का स्क्रिप्ट आया तो उन्होंने अपनी
थोड़ी डेट्स आगे करवाई ताकि इस ड्रामे के साथ इंसाफ कर सकें। सबा कमर ने कहा कि वो कभी स्क्रिप्ट पढ़े बगैर हाँ नहीं करती। जब उन्होंने केस नंबर 9 का स्क्रिप्ट पढ़ा तो उन्हें लगा कि किसी सीनियर राइटर ने ये ड्रामा लिखा है। उन्हें ये जानकर हैरत हुई कि ये शाहजेब खानजादा का पहला ड्रामा है। मैंने जब ड्रामा लिखा तो मुझे लग रहा था कि बड़ी मुश्किल होगी इस ड्रामे का, कि इशू बेस्ड ड्रामा होगा। ज़ाहिर वो एक ड्रामा है मगर इशू बेस्ड होगा। मुझे तो सेवंथ स्काई की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। वजाहत हुसैन जिन्होंने खाई बनाया है, अमेजिंग डायरेक्टर, वो बहुत एक्साइटेड थे मैंने करना है। मुझे लगा सबा हाँ नहीं करेंगे, फैसल हाँ नहीं करेंगे, इन्होंने फौरन हाँ की। तो लोग काम करना चाहते हैं अगर उन्हें करना। मैं तो लड़ा हूँ, मैंने कहा डेटें आगे करो, मुझे नहीं पता। मैं स्क्रिप्ट पढ़े बिना हाँ नहीं करती। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा मुझे लगा कि किसी बहुत सीनियर राइटर ने लिखा है। आई कॉल्ड माय डायरेक्टर, मैंने कहा ये कहते हैं शाहजेब, मैंने कहा पहला ड्रामा है, कहते हैं यस यू आर गोना लव इट। ड्रामा केस नंबर 9 हर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे जियो टीवी पर नशर किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा है कि वो गजा में फौरी जंग बंदी चाहते हैं, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को इनाम देने जैसा होगा। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक को चाहिए कि वो यरगमालियों की वापसी मुमकिन बनाएं। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंद करवाने का जिक्र कर दिया। कहा उन्होंने पाकिस्तान और भारत के साथ 7 मुल्कों में जंग बंदी करवाई है। अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए ट्रंप ने कहा जंग बंदी के मामलात के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार भी राबता नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात की ज़रूरत है। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से दूसरे मुलाकात की। पायदार दिफाई ताउन का आज़म दोहराया। मुलाकात में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मजहबी और तारीख़ी रवाबित इस्तवार हैं जो दोनों ममालिक की अफवाज के माबैन बेमिसाल दिफाई ताउन का मज़हर हैं। मुलाकात में जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने भारत के खिलाफ हालिया तनाज़े के दौरान पाक फ़ज़ाइया की शानदार कारकर्दगी पर सरबराह पाक फ़ज़ाइया को मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासिबत से मुनाकिदा तकरीब में शिरकत की। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और दीगर सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासिबत से केक काटा। सऊदी अरब की क़यादत और आवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद दी। कहा पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती के लिए अहम साबित होगा। एशिया कप सुपर 4 मरहला पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबले है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 134 रन का हदफ दिया है। कमांडो मेंडेस 50 और श्रीलंका 20 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने 2-2 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 4 रन बना लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने इत्तेफाक किया है कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक को गोंगलू से मिट्टी झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो फ़लस्तीन में नस्ल कुशी खत्म नहीं करवा सकते। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि गजा में नस्ल कुशी मुसलसल जारी है। इसराइली क़यादत बेकाबू हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा गजा में अपने अमले को भी इसराइली हमलों से बचाने में नाकाम रही। गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए और वहाँ इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी होनी चाहिए।